السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مرکزی بجٹ سراسر جھوٹ اور دھوکے پر مبنی بجٹ، وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے مرکز پر شدید برہمی کا کیا اظہار۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے اعلیٰ عہدیداروں نے مکہ مسجد کا کیا دورہ، ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ چالیس لاکھ خاندانوں کا فیور سروے کے دوران کیا گیا معائنہ، بڑے پیمانے پر کورونا میڈیسن کٹس کی تقسیم، محکمہ صحت کے عہدیداروں نے حکومت کو رپورٹ پیش کر دی۔ بین ریاستی اسمگلنگ ریاکٹ بے نقاب، نائجیریائی شہری کے بشمول 4 ملزمین زیر حراست، SOT LB نگر اور نیلمیٹ پولیس کی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رامن کے پیش کردہ سال 2022-23 کے بجٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت کا پیش کردہ بجٹ صرف اعداد و شمار پر مبنی ہے، لیکن اس بجٹ سے ملک اور ریاست کے اقلیتوں اور SC/ST طبقات کو کافی مایوسی ہوئی، کیونکہ مرکزی وزیر فینانس کے پیش کردہ بجٹ میں مذکورہ طبقات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ ملک کی اقلیتوں اور دیگر طبقات نے منگل کے روز پیش کیے جانے والے بجٹ سے کافی امیدیں وابستہ کی تھیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مرکزی حکومت اور BJP پر سخت تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ مرکزی حکومت دلتوں کی ترقی کے خلاف ہے اور مرکزی حکومت مسلسل تلنگانہ کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہی ہے اور ریاست کو اس کا حق دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کہا کہ صرف 1 یا 2 اسکیم روئے عمل لانے سے ملک اور ریاست کی عوام کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت کی اسکیمات تلنگانہ کی ریتو بندھو اسکیم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مرکز سے ریاست کے بقایا جات کی ادائیگی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور BJP کے ملینیم مارچ کی دھمکی کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ اس میڈیا کانفرنس میں ریاستی وزراء محمود علی، ہریش راؤ، سرینواس یادو، ستیہ راٹھور کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے فیور سروے کے پہلے مرحلے میں، جس کا انعقاد 21 جنوری سے 29 جنوری تک عمل میں لایا گیا تھا، اس کی رپورٹ حکومت کو پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 8 روزہ فیور سروے کے دوران 40 لاکھ خاندانوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 6,58,000 افراد کو ریاست بھر میں مختلف دواخانوں میں ان پیشنٹ کی حیثیت سے علاج کروایا گیا اور ان 40 لاکھ خاندانوں میں 3,97,888 افراد میں کورونا کٹس تقسیم کیے گئے، جن میں کورونا کی معمولی علامتیں پائی گئی تھیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ آئسولیشن کٹس 18,758 حیدرآباد میں اور سب سے کم 185 کٹس ضلع محبوب آباد میں تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ GO 317 کو بہتر قرار دیتے ہوئے بتایا کہ یہ GO سرکاری ملازمین اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ انہوں نے BJP قائدین کی جانب سے کیے جانے والے احتجاج کو شرمناک قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے بتایا کہ مرکزی حکومت کی متعارف کردہ اسکیمات ہماری صرف ایک اسکیم یعنی ریتو بندھو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ حیدرآباد کی تہذیب ملک و دنیا بھر میں مشہور ہے اور اسی کی وجہ سے ریاست اور حیدرآباد میں آئے دن صنعتوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔
टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन की जानिब से बेरोजगारी के मसले पर असम्बली के बजट इजलास के मौके पर मिलीनियम मार्च के मंसूबे की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय और मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी के अलावा दीगर अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को चाहिए कि वो पार्लियामेंट के जारिया बजट इजलास के दौरान हैदराबाद में मिलीनियम मार्च मुनक्किद करने की बजाय नई दिल्ली में एहतजाज करें, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, ताहम वो इस वादे को पूरा करने में नाकाम हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 फरवरी चारशंबे को 11 बजे दिन रियासती बीजेपी कायदीन के साथ वर्चुअल के ज़रिए इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए आइंदा साल 2023 में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार पर फायज करने के लिए अभी से सरगर्म हो जाने की हिदायत देंगे। इसके अलावा मंगल के रोज़ पेश करदा मरकज़ी बजट से मुताल्लिक़ बाज़ वज़ाहतें भी वज़ीर आज़म करेंगे। इस इजलास में बीजेपी कायदीन बी संजय, किशन रेड्डी, डी अरविंद, बाबू राव के अलावा ई राजेंद्र व दीगर शिरकत करेंगे। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. ख़ान और डायरेक्टर शाहनवाज़ क़ासिम ने अहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करते हुए तामीरी कामों का जायज़ा लिया। तफसीली दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए ए.के. ख़ान ने बताया कि माह फरवरी में ये काम ख़त्म होने थे, लेकिन इसमें मज़ीद 15 दिन का इजाफ़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक उम्मीद है कि मस्जिद के तमाम अंदरूनी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि रमज़ान से पहले ये काम मुकम्मल होने चाहिए। अलावाज़ी बरक़ी के कामों पर 1 करोड़ का खर्च आ सकता है। ए.के. ख़ान ने बताया कि रमज़ान में मस्जिद के तमाम अहाते को मुसल्लियों के लिए दस्तयाब रखा जाएगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस बार रमज़ान में साबिक़ की तरह रौनकें बहाल होंगी। बहादुरपुरे के इलाके किशन बाग में फुटपाथ पर कायम गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करवा दिया गया। बताया गया है कि किशन बाग चौराहे के पास से बल्दिया की तरफ से ये मुहिम चलाई गई और बल्दी हक्काम की तरफ से कहा गया है कि फुटपाथ आवाम के चलने के लिए होते हैं, लेकिन फुटपाथ पर कब्ज़ों की वजह से आवाम सड़क पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात पेश आते हैं। मुकामी ताजरीन को भी खबरदार किया गया है कि फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात से गुरेज करने वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब हुकूमत की इजाज़त के बाद हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबाद से उम्रा अदा करने की गर्ज से काफ़िलों की रवानगी का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले के तहत खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का पहला काफ़िला कोविड वबा के बाद रवाना हुआ। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के सरबराह अलहाज इमरान खान इस काफ़िले की निगरानी कर रहे हैं, जबकि काफ़िले में साबिक़ सरनशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और उनके वालिद भी शामिल हैं। प्रोप्राइटर खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स अलहाज इमरान खान के मुताबिक सऊदी हुकूमत से उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है और तमाम सहूलियात उम्रे के दौरान आज़मीन उम्रा को पहुंचाई जाती है। इस काफ़िले में तकरीबन 40 उम्रा ज़ायरीन शामिल हैं। पूजा में आते शुभ आए हुए अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह से फिर और एक बार जो सो उम्रे के लिए रास्ते पूरे खुल चुके हैं और बाकी से एक ग्रुप ऑलरेडी गया है और ये पहला ग्रुप जो सो इमरान भाई का जो खुबा ट्रेवल्स का है माशाल्लाह से काफ़ी लोगों के साथ ये ग्रुप को लेके जा रहे हैं। मैं और जितने भी लोग आपके साथ खुबा ट्रेवल्स के साथ जा रहे हैं, जितने भी उम्रा करने के लिए मेरे वालिद साहब भी है, मैं आप लोग सबके से आप लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ आप हम सबके लिए दुआ करिए
और फिर ये जो भी रास्ते हैं सब आसानी से हो। जो ये वबा चल रही है वबा भी जल्द से जल्द ख़त्म हो, इसके लिए भी आप लोग दुआ करिए और ख़ासकर हमारी हुकूमत के लिए भी आप लोग दुआ करिए। स्पेशल ऑपरेशन टीम और राजेंद्र नगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर खैबागिरी के अड्डे पर धावा करते हुए 2 खातून ऑर्गेनाइजर्स के बशमूल 2 गाहकों को हिरासत में लिया, जबकि 2 लड़कियों को इस अड्डे से आज़ाद करवाया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मलकपेट के साकिनान खातून ऑर्गेनाइजर्स से इस सिलसिले में पूछताछ भी जारी है। మా నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నేను మా సిబ్బందితో పాటు హైదర్గూడలో ఈశ్వర్ థియేటర్ ఎదురుగా ఉన్న ఒక బిల్డింగ్లో డబల్ బెడ్రూమ్ రూమ్లో ఇట్లా మసాజ్ సెంటర్ నడిపిస్తున్నారు. మసాజ్ సెంటర్ పేరుతో ఇంకా ఇల్లీగల్గా వర్క్ నడుస్తుంది ఏదో అని చెప్పేసి మాకు సమాచారం అందడంతో నేను మా సిబ్బందితో పాటు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేసరికి బయట హాల్లో ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకొని ఉన్నారు. హాల్లో మాత్రం మసాజ్ సెంటర్, బ్యూటీ పార్లర్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా కనిపించింది. లోపలికి వెళ్ళి చూడగా ఒక 3 లేడీస్ 4 జెంట్స్ అక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళని ఏంటి అని విచారించగా వాళ్ళకి అక్కడ ఈ సెక్స్ ర్యాకెట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్తో పాటు కాండోమ్స్, ఇంకా దానికి సంబంధించిన డిస్పోజల్ బెడ్షీట్స్, ఇన్నర్ వేర్ అన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకు అని అడిగేసరికి అప్పుడు దాంట్లో ఉన్న 2 విక్టిమ్ లేడీస్ని అడిగితే వాళ్ళు ఈ విధంగా కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. మేము ఇట్లా పడుపు వృత్తి చేస్తున్నాము, పొట్టకుడి కోసం ఇట్లా వచ్చాం, మాకు ఈ ఆర్గనైజర్స్ పలానా వాళ్ళని 2 చూపించారు. एसओटी एलबी नगर जोन और नीलमेट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक बैन रियासती ड्रग स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 4 मुलजिमीन बशमूल एक नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 9,10,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल नकद रकम बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। करके इनको हिरासत में लिया है और वहाँ पे कुछ कोकेन इनके पास हमें बरामद हुआ। और उसके बाद जब मार्क वालबी का पैरामाउंट हिल, बंजारा हिल का घर जब हमने सर्च किया तो वहाँ पे भी टोटल कुल मिला के 38 ग्राम कोकेन, 3 टू व्हीलर्स और 4 मोबाइल फ़ोन, 22,000 रुपया कैश, वेइंग मशीन और बाकी सामान हमें बरामद हुआ है। ये जो गैंग है, इस गैंग में खासकर अभी जो नेरड़मठ के जो बच्चे मिले हैं उसमें तो एक कॉलेज में पढ़ रहा है, फाइनल ईयर बीकॉम कर रहा है ईसीआईएल में, और अभिषेक सिंह जो है इससे पहले भी ड्रग केस में। निज़ामपेट में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया, जहां ग्राउंड फ्लोर से लगी आग ने पहली मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मरीजों को बाहिफाजत नीचे ला लिया गया। बाद में 4 फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कुशाईगुड़ा के इलाके से लापता हुए जोड़े की लाशें मुश्तबा हालत में बुलारम के पास रेलवे पटरियों पर पाई गई। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। बताया गया है कि भूलक्ष्मी कुंडैया और उसकी अहलिया गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थे। उनकी बेटी आयशा ज्योति ने कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बताया गया कि खुदकुशी करने वाले जोड़े की बेटी आशा ज्योति कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। मुतवफ़ी कोंडिया तिरमलगिरी आर्मी रीजन में सूबेदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। ये खुदकुशी है या फिर कोई और वाक़या, इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर और बल्दी ओहदेदारों के हमरा एक इजलास में शिरकत करते हुए मलकापुर नाला और अफजल सागर नाले की तोसी के सिलसिले में किए जाने वाले कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और कामों की तेज़ रफ्तार तकमील के सिलसिले में भी तवज्जो मबजूल करवाई। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस ने मज़कूरा कामों के सिलसिले में मंजूरी दिलवाई है। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नाला और अफजल सागर नाला, ये दोनों नालों का ऑलरेडी टेंडर हो गया, वर्क स्टार्ट होने का है। अफजल सागर नाले का वर्क स्टार्ट हो गया था, उसको फास्ट प्रोग्रेस करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी और बलकापुर नाले को जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए ये मीटिंग रखी थी। खास तौर से नफीद मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये बलकापुर नाला और हबीब नगर अफजल सागर नाले के लिए हुकूमत तेलंगाना से न सिर्फ बात की बल्कि KTR साहब को कह के SNDP के अंदर ये दोनों वर्क सैंक्शन कराए थे, जिसके लिए वर्क को फास्ट प्रोग्रेस करने का है। आइंदा आने वाले टाइम पे कोई भी बस्ती लोकेलिटी के अंदर पानी का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए यहाँ पर साइबर क्राइम हैदराबाद पुलिस ने महेश बैंक हैकिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त करते हुए 5 अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स और ख़ातून को हिरासत में लिया गया, जबकि बेंगलुरु से 3 अफराद को इस केस के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे कि साइबर क्राइम पुलिस करोड़ों रुपये के खुर्द-बुर्द के इस केस में हुनूस तहकीकात कर रही है। नारायणगढ़ पुलिस ने अगवा के केस को हल करते हुए मुगविया शख्स को आज़ाद करवाया और इस केस में मुलविस मुलज़िमीन को हिरासत में लिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर नारायणगढ़ पुलिस गट्टू मल्लू के मुताबिक गौस पाशा का अगवा किया गया था और इसमें यूसुफुद्दीन और उसके दोस्त मुलविस थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद इस केस को हल किया है। थोड़ा पैसा देने का है गौस पाशा, उसमें सिलसिला में 1 साल से उन्हें उसको नहीं मिल रहा और उसको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा बोल के 1 साल से उन्हें किधर गया नहीं मालूम बोल के घर भी खाली करके दूसरे जगह पे आया। उन्हें उसको ढूंढने का सिलसिला में आज कल रात में एक दोस्त उसका कॉमन फ्रेंड एक बार उसको शादी में देख के उसको कॉल करे, इधर आया बोल के गौस पाशा बोल के कॉल करे, तो उन्हें उसका और 3 दोस्त से मिल के इधर आके वो पैसों के सिलसिला में बात करेंगे बोल के उसके फंक्शन हॉल से बाहर आने के बाद उसको लेके जाके गाड़ी में बिठा के ये पैसों के बारे में बात करने को उसका और दूसरा उसमें गाड़ी में दूसरा दोस्त है उसके पास गौस पाशा, उसका पास भी उसके नाम भी उसका मोइनाबाद के पास उसका फार्म हाउस में शेड है, वहाँ लेके जाके बात करेंगे बोल के वहाँ लेके जाके उसको बिठा के वो पैसों के बारे में बात कर रहे। जब वो टाइम पे अपने को इन्फॉर्मेशन मिला टेक्नोलॉजी से जाके उसको रेस्क्यू करके किडनैपर करे 100 आदमी के और उसको करे 100 आदमी यूसुफुद्दीन को और विक्टिम को बच के उसको घंटों का टाइम पे लेके आया उसको। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफ़ार ख़ान साबिक़ सदर शोबे अरबी मुमताज़ कॉलेज साकिन जहानुमा शाम 5 बजे इंतकाल कर गए। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफ़ार ख़ान सदर जमहूरिया अवार्ड याफ्ता थे, जबकि अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई अवार्ड्स भी हासिल किए थे। वो डॉक्टर अब्दुल सत्तार ख़ान मरहूम के भाई और इस्माइल ख़ान मरहूम के फ़र्जंद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी बजट सरासर झूठ और धोखे पर मुबनी बजट, वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने मरकज पर शदीद बरहमी का किया इजहार। महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों ने मक्का मस्जिद का किया दौरा, तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। चालीस लाख खानदानों का फीवर सर्वे के दौरान किया गया मुआयना, बड़े पैमाने पर कोरोना मेडिसिन किट्स की तकसीम, महकमे सेहत के ओहदेदारों ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। बैन रियासती स्मगलिंग रैकेट बेनकाब, नाइजीरियाई शहरी के बशमूल 4 मुलजिमीन जेर हिरासत, SOT LB नगर और नीलमेट पुलिस की कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।